Welcome guys, this is my first video on YouTube, so please subscribe my channel, like and comment it. जैसा कि आपने देखा कि ये सॉल्यूशन है साइंस CBSE 2021 के क्वेश्चन पेपर का। ये फास्टेस्ट सॉल्यूशन है सेट 1 कोड नंबर 31(3). बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। सेक्शन ए जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो इसका आंसर है अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अ इक्वेशन वेयर द नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ साइड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 2H2 + O2, सो द प्रोडक्ट विल बी 2H2O। इसमें और करके भी एक क्वेश्चन पूछा गया है वाई रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इसका आंसर होगा रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन इट। एग्जाम्पल भी नीचे दिया हुआ है जिसको देख के आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगली सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। So its answer will be combination reaction because calcium oxide when react with water it form calcium hydroxide. Calcium oxide which is a quicklime. Now move to next question. We will question number 3 is state the purpose for which litmus paper is used in laboratories. And question number 4 is why is potassium kept immersed in kerosene. There is another question which is given in ore. Write the name of an allotrope of carbon. Okay, look its answer. Answer of question number 3 is the main use of litmus is to test whether a solution is acidic or basic. Answer of question 4 is potassium is very reactive element. It can catch fire if it kept in open. Hence to protect it and to prevent accidentally fires, they are kept immersed in kerosene. There was a or question of question number 4. So its answer will be diamond, graphite, etc. Now move to question number 5. So question number 5 is write the structural formula of an organic compound in which a heteroatom is present. I will not give you the answer of this question. You will comment it in the comment box. Question number 6. Why do arteries have thick elastic walls? There is another question which is given in or. So question number 6b. Name the molecule of energy which is synthesized during respiration. Let's see its answer of question number 6. Answer of question number 6. Arteries carry blood away from the heart to various organs of the body. Since the blood emerges from the heart under high pressure, that's why the arteries have thick and elastic walls. There was another questions which was in or. So I hope you have given the right answer in your examination. So its correct answer will be ATP, adenosine triphosphate, is the molecule of energy which is synthesized during respiration. Another question number 7. Define fragmentation. Now we will look at answer after reading question number 8. Question number 8 saying that which one of the following is the correct reason for twinkling of a star. Okay, now see both answers. Fragmentation is a method of asexual reproduction where the body of the organisms breaks into smaller pieces. And its example will be Hydra. Answer of question number 8 will be B. Atmospheric refraction of starlight. Now moving to next question. Question number 9 is asking that give an example where a variation will help an organism to survive in a changed environment. Maybe your answer and my answer will be different, but I will try to give my best. So I have written the answer. A population of reproducing organisms were suited to a particular niche, and if the niche were drastically altered, the population could be wiped out. However, variation should be present in the individual so that there should remain some chance of their survival. There is a one more question in question number 9 which is given in into or. So question is asking that
If we observe the earlobes of the students in a class, which variant are we likely to find? We know that there are two types of earlobes. First, free earlobes. Second, attached earlobes. Okay. Mainly free earlobes are found in most students. So free earlobes will be the correct answer. I know answer of this question is not given your NCERT book, but it is right. Okay. Now moving to the next question. Question number 10 is define the term heredity. It is very easy question and its answer will be it. Heredity. It means the transmission of features, characters, traits from one generation to next generation. It is very easy question. Now moving to the next question. Question number 11. Question number 11 is the refractive index of glass is 1.50. What is the meaning of this statement? Now we will see its answer after reading question number 12. 12a. Why do two magnetic field lines not intersect each other? And there is another question, or what is an electromagnet? Now look the answer. Now look at answer. This means that the ratio of speed of light in air and the speed of light in glass is equal to 1.50. This was the answer of question number 11. Now we will see the answer of question number 2. Question number 12 was asking that why magnetic fields are not intersect two magnetic fields. So its answer will be because if there was point of intersection, the compass needle would point towards two direction, which means the magnetic field has two different direction, which is not possible. That's why the two magnetic lines never intersect each other. Okay, now moving to the another answer of the question, what is an electromagnet? So an electromagnet is a temporary magnet which behaves like a magnet when an electric current is passing through insulated copper wire. I hope you all have given the correct answer of these questions. Now moving to the next question, question number 13. Question number 13 is name the instrument used to detect the presence of a current in a circuit. So its answer will be galvanometer, which is an instrument which is used to detect the presence of a circuit current in a circuit. I think many of the student have given answer like ammeter. So मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि जो एमीटर है ना वो मतलब करंट को मेज़र करता है और जो गैल्वेनोमीटर है ना वो डिटेक्ट करता है करंट को सर्किट में. सो इट आंसर विल बी गैल्वेनोमीटर नॉट एमीटर. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो question number 14 to 16, these questions are assertion reasons question. Maybe my answer will be wrong, but I have tried my best. So let's see what you have written and what I have written. Okay, let's see. Question number 14, assertion. Assertion is saying that in human beings, when air is taken into the body through the nostrils and passed through the throat, the air passage does not collapse. So it is true. Now read the reason. Reason is saying that rings of cartilage present in the throat ensures that the air passage does not collapse. So reason is also true, and reason is the correct explanation of A. Okay, so it will be A. Both assertion and reasons are true, and reason is the correct explanation of A. Now moving towards the question number 15. Question number 15. Assertion is saying that sexual reproduction involves two parents of different sexes, a male and a female, which produce male and female gametes respectively. So assertion is right. Okay, now read the reason. Reason is saying that the male and female gametes fuse to form a zygote, which is right in sexual reproduction, which develops into a new individual. So it is right. Assertion and reason both are right, and reason is the correct explanation of A, because new individual is formed when zygote will be formed. Okay, I think it is right. आपने जो आंसर लिखा है वो मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं अपने आंसर को एक बार फिर से देख सकूं, और आप उसमें ये भी बताइएगा कि आपका आंसर क्यों ठीक है कमेंट सेक्शन में. ठीक है. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16. ओके, क्वेश्चन नंबर 16.
assertion is saying that a concave lens of very short focal length causes higher divergence than one with longer focal length. So it is right. It is also given in your NCERT book. Now read the reason. So reason is saying that the power of a lens is directly proportional to its focal length, which is not correct. So its answer will be assertion is true but reason is false. Power of lens is inversely प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ वो होता है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है जो गलत है। यहाँ एक और क्वेश्चन है 16 का और करके, एजर्सन द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, इट इज ट्रू। नाउ रीजन, द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज निगेटिव, सो इट इज फॉल्स बिकॉज पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज निगेटिव and convex lens is positive. So assertion is true but reason is false. Okay, now moving towards the question number 17. Okay, we have to do 4 out of 5. Okay, as you know, question number 17 to 20, which is a case study. So start question number 17. I am not going to study the whole case study. Okay, so I am coming into the question number 1 of 17. First question, the periodic table was created to. So I have to tell on what basis the periodic table was created. I have to give the answer. Which one of the following statement is not true? Which is not true? Okay, you read the option and I am directly giving its answer. Its answer will be option D. Separate the naturally occurring elements from man-made ones. Okay, because periodic table was not created to separate the naturally occurring element from man-made ones. Okay, understood. Now moving towards the next question. So question number 2 of 17. Question is asking that the atomic masses of certain groups of elements are given below. ये आपका दिया हुआ है और पूछ रहा है out of these 3 A, B and C the dominant traits is or are. तो देखो, तो डोमिनेटेड ट्रेड वही होता है जिसका फर्स्ट का एलिमेंट और लास्ट का एलिमेंट का जो सम करेंगे और फिर जो उसका एवरेज निकालेंगे तो वो उसका मिडिल का बराबर होना चाहिए। तो इसमें देखो, जो बी है और सी है, ग्रुप बी और सी, वो देखो उन दोनों में आंसर आ रहा है, लेकिन जो पहला ग्रुप में है उन लोगों का जब हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं तो मिडिल वाले टर्म का एवरेज मतलब नहीं आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो इट्स आंसर विल बी ऑप्शन ए, एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड इन ग्रुप्स ऑफ 8। सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट, देखो जब वो न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स बनाया था ना, तो वो 7 का ग्रुप मतलब 7 एलिमेंट का ग्रुप में रखा था, वो 8 नहीं था, तो ए जो है वो फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिमेंट्स वेर अरेंज्ड इन ग्रुप्स ऑफ 8। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ऑफ 17, इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल गैप्स वेर लेफ्ट फॉर द एलिमेंट्स टू डिस्कवर्ड लेटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड अ प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल लेटर। सो इट्स आंसर विल बी ए, जर्मेनियम। ओके, यू नो आई नो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें 4 ही क्वेश्चन करना है जो हम लोग कर चुके हैं, तो 17 का जो 5 है ना, उसका आप आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, मैंने आंसर भी सभी का लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 का 1 से 4 तक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर 1, वायरसेस शो मोलिकुलर मूवमेंट व्हेन दे आर। सो देखो, इसका हमको आंसर निकालना है, तो यहाँ पर जो है ना वो पैराग्राफ में ही दिया हुआ है। तो सेकेंड लाइन में दिया हुआ है, वायरस आर सेड टू बी लिविंग एज दे ऑल्सो शो मोलिकुलर मूवमेंट बट ओनली व्हेन दे आर इनसाइड अ लिविंग सेल। सो इट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ई। ठीक है, तो 18 का डी होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका आंसर आपको पैराग्राफ से इजीली मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 18 का 2 क्या बोल रहा है, द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ O2 फ्रॉम आउटसाइड एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट इज़ वेरी इजी। ओके,
Now moving towards the next question. 18 का क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ठीक है, तो एनर्जी इज नीडेड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ प्रोसेस, इट इज करेक्ट. ग्रो, इट इज ऑल्सो करेक्ट. रिपेयर ऑन आउट टिश्यूज ऑफ द बॉडी, इट इज ऑल्सो करेक्ट. सिंथेसाइज वेस्ट मटेरियल, इट इज रॉन्ग. सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. नाउ moving to the next question. Question number 4 of 18. The type of nutrition found in green plant is autotrophic. It is very easy. Okay, देखो क्वेश्चन नंबर 18 का जो 5 है उसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. आप बताइए कि आपने 18 का 5 का कौन सा आंसर एग्जाम में लिख के आया है. कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ बढ़ते हैं. केस स्टडी नंबर 19. अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ी है तो आपको केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 19 का बिना पढ़े भी आपको आंसर मिल जाएगा. सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 19. रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, इट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ. इट्स आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. ओके, क्वेश्चन नंबर 19 का 2 में हमको बताना है कि एंगल 1 और एंगल 2 को क्या कहते हैं. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस. ठीक है, तो एंगल 1 होगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल 2 होगा एंगल ऑफ इमरजेंस. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 19. ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज. Its answer will be option number D, a scattering of light. Okay. Now question number 4 of 19. The apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset is due to. Its answer will be option C, atmospheric refraction of starlight. Okay. We have to do only 4 questions. So now moving to the next case study. Case study number 20. मैंने क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर आपको आंसर्स दे दिया है, वो आप एक बार फिर से मैच कर लीजिए. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर. इस बार मैं फिर इस केस स्टडी को पढ़ने वाला नहीं हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही चलता हूँ. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर ये क्या बोल रहा है 1. ठीक है, अ मैग्नेटिक नीडल इज एन. आई थिंक इट करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, अ स्मॉल बार मैग्नेट पिवोटेड एट इट्स सेंटर ऑफ मास. आई थिंक इट इज दैट. आपने क्या लिखा है आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. तो 20 के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं. अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन जियोग्राफिकली नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बिकॉज. देखिए इसका हमको करेक्ट आंसर तो पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, द अर्थ हैज़ 2 पोल्स. इसीलिए जो है उसका नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जो है मतलब मैग्नेट को मूव करता है. ठीक है, आपने क्या आंसर लिखा है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 320 का. सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस फील्ड. सो read the options. I am directly giving you the its correct answer. So it correct answer will be option number D, 1 and 3. because देखो because क्या बोल रहा है, देखो the direction of magnetic field of a current carrying a straight conductor is determined by right hand thumb rule, जो सही है. और थर्ड का देखो the magnetic field lines around a current carrying a straight conductor are in the form of concentric circles with the conductors as the center, जो कि सही है. लेकिन जिसका सेकंड वाला है वो तुम्हारा गलत है. ठीक है, मेनली यही पूछ रहा था कि इसका जो है तो वो फील्ड किस पे, मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, तो वो 1 और 3 पे करेगा. ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज asking that the strength of magnetic field of a current carrying solenoid is. तो इसका आंसर होगा बी, यूनिफॉर्म इनसाइड इट एट ऑल पॉइंट्स. अगर आपने एनसीईआरटी बुक अच्छे से पढ़ा है तो आपने सही करके आया होगा. ठीक है, अगर आपने कोई भी बुक पढ़ा हुआ तो मेरे हिसाब से आपने सही एग्जाम में करके आया होगा. ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 का. ठीक है, इसमें सारा आंसर आपका दिया हुआ है. तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 21 इज आस्किंग दैट गिव द केमिकल नेम ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन. तो HNO3 को क्या कहते हैं,
निट्रिक एसिड। CaOH होल टू को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaNO3 होल टू को क्या कहते हैं? कैल्शियम नाइट्रेट। और H2 को वाटर कहते हैं। आप लोगों ने H2 को एग्जाम में क्या लिख के आया है वो हमको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो सेक्शन भी है आपका पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 22 का ये क्या कर रहा है? आउट ऑफ 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड विच वन इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाई? सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एन स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि जब उसका हम लोग पानी में उसको मिलाएंगे तो H+ आयंस ज़्यादा निकलेगा एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। ओके। और क्वेश्चन में पूछ रहा है राइट द नेम मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ वन मोर स्ट्रॉन्ग एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? एक और मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, बस वो उसका एक आपको एग्जांपल देना है, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। देर इज़ वन मोर क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 22 विच इज़ गिवन इन इनटू और। क्वेश्चन नंबर बी इज आस्किंग दैट व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, गिव एन एग्जांपल। नाउ लुक इट आंसर। तो मैंने यहाँ पर 21 का आंसर दे दिया है। अब 22 का आंसर भी मैंने दे ही दिया है, फिर भी आप इसको चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। तो 22 का बी का आंसर देखिए, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। यू हैव टू राइट वन आउट ऑफ these 2 examples. It is very easy question. Okay, now moving to the next question. Question number 22 is asking that give reason. Gold and silver are used for making jewelry. So इसका reason देना है। और B क्या बोल रहा है? A few metals are used for making cooking utensils. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। A का आंसर होगा they are highly lustrous metals which are resist to corrosion. ये पहला होगा, मतलब 2 पॉइंट है तो मैं 2 पॉइंट में से एक बता दिया हूँ, दूसरा बता रहा हूँ। दे आर हाईली मेलिएबल एंड डक्टाइल सो कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनी शेप एंड डिज़ाइन। अब कोल को तो ज्वेलरी के जैसा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आंसर ऑफ बी कि कुछ मेटल्स को ही हम लोग कुकिंग यूटेंसिल्स में क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर होगा एल्युमिनियम वी यूज़ एज अ कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज दीज आर चीप, durable, easy to work with and to cast into different shapes and it is metal so it will conduct heat well. तो एल्युमिनियम इसका मैंने एक एग्जांपल दिया है जो कि बहुत चीप है और ये हीट को अच्छे से कंडक्ट करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 ए, कार्बन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स मेकिंग द कंपाउंड स्टेबल, गिव रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। मैं दोनों का आंसर एक ही बार दूंगा, 24 का और का भी। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन एंड इथेन। तो 24 का भी बहुत आसान है और ए भी बहुत आसान है, तो चलिए इसका आंसर को देखते हैं। 24 का आंसर देख लीजिए, कार्बन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज इनेबलिंग द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। तो ये इसका राइट आंसर होगा और आपने भी जो लिखा हो एग्जाम में वो भी राइट ही होगा। तो अब हम लोग 24 का बी वाला का आंसर देखते हैं। ये 24 का बी का और वाला आंसर है। इसका जो है हम लोग को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाना था, तो मैंने मीथेन और इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखा दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 का ए बोल रहा है कि इस जो ग्राफ दिया हुआ है उसको लेवल करना है, जो आप लोगों ने एग्जाम में आसानी से लेवल कर लिया होगा। तो मैं इसका आंसर नंबर बी दे रहा हूँ, ठीक है। इफ़ अ चाइल्ड इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर व्हाट विल बी हिज हर जेंडर। तो हमको बताना है कि जो चाइल्ड होगा उसका जेंडर क्या होगा। तो वो एक गर्ल होगी क्योंकि उसके फादर से एक्स आया है और मोम के पास का जो क्रोमोसोम होता है वो XX होता है। सो इट इज़ ईजी, so the child will be a girl. Now moving towards the next question, question number 26. Question number 26 is asking that what is an ecosystem, give one example of natural and second is man-made. चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो इकोसिस्टम क्या होता है? ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया टुगेदर विथ नॉन लिविंग constituents of the environment form an ecosystem. तो पूछा गया था कि एक नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जांपल दीजिए और एक मैन मेड का। तो नेचुरल इकोसिस्टम हो गया फॉरेस्ट और मैन मेड हो गया आपका एक्वेरियम, ठीक है। आपका एग्जांपल डिफरेंट हो सकता है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, जो है सेक्शन सी, जो 3 मार्क्स पर क्वेश्चन कैरी करेगा। क्वेश्चन नंबर 27 इज आस्किंग दैट व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच आयरन इज अ रिएक्टेंट। हमको वो भी एक एग्जांपल देना है जिसमें आयरन का है, वो एक रिएक्टेंट जैसा काम करेगा। इसका आंसर मैं एक ही बार दूंगा। नेम वन मोर एलिमेंट विच बिहेव इज सिमिलर टू दैट ऑफ आयरन इन सच रिएक्टेंट। ठीक है, और क्या पूछा जा रहा है, वाई विल दिस काइंड ऑफ बिहेवियर नॉट बी शोन बाय गोल्ड। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसका एग्जांपल Fe को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं कॉपर सल्फेट से, तो फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। कॉपर क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, इसका एक और रिएक्शन क्या होगा, जिसे पूछा गया था ना, एक और रिएक्शन दिखाइए। तो हो जाएगा जब जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से, तो बन जाता है जिंक सल्फेट, और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्ड ऐसा बिहेव क्यों नहीं करता आयरन और जिंक जैसा। तो इसका आंसर है, देखो, गोल्ड इज नॉट वेरी रिएक्टिव एलिमेंट, सो इट इज़ नॉट एबल टू डिस्प्लेस मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो क्या होगा वो बताना है। व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन बोर्ड, तो हमको केमिकल इक्वेशन भी दिखाना है, और साथ ही साथ पूछा गया है नेम द गैसेस इन्वॉल्व एट कैथोड और एनोड पे कौन सा गैस जो है वो इन्वॉल्व है, और नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन दीज गैसेस कंबाइन। तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, लेट्स सी इट्स आंसर। तो इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब वो ये डिकम्पोज हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। और इक्वेशन दिखाने कहा था, तो ये रहा आपका इक्वेशन। जब NaCl 2H2O से रिएक्ट करेगा तो NaOH Cl2 और H2 बनेगा। और पूछा था कि एनोड पे कौन सा गैस आएगा और कैथोड पे कौन सा गैस आएगा, तो एनोड पे Cl2 आएगा और कैथोड पे H2 आएगा। और पूछा था जब ये गैस कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, तो HCl गैस फॉर्म होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इजी है, तो मैं इसका आंसर आपको क्वेश्चन पढ़ते के साथ दे देता हूँ। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 20, तो राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2882। ठीक है, स्टेट वेदर दिस एलिमेंट इज अ मेटल और नॉन मेटल, तो ये तो एक मेटल है, क्योंकि 20 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कैल्शियम का होता है, और कैल्शियम जो एक मेटल है। व्हाट इज इट्स वैलेंसी, तो इसका वैलेंसी जो है वो 2 होगा। राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच दिस एलिमेंट फॉर्म्स विथ क्लोरीन, तो जब कैल्शियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, मैं इसका आपको आंसर का फोटो दे देता हूँ। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 30 और 31 को आप पढ़ लीजिए, मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। सो 30 का पहला का आंसर होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिज्म यूजिंग दिस प्रोसेस टू रिप्रोड्यूस, तो राइजोपस होगा। ठीक है, सेकंड पूछ रहा है रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ सच ऑर्गेनिज्म, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा आपका स्पोरेंजिया, और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा आपका हाइफी। ठीक है, और फिर पूछ रहा है 2 को बेनिफिट बताइए स्पोर फॉर्मेशन का, तो इसका जो 2 को बेनिफिट होगा वो होगा, पहला द ऑर्गेनिजम्स डज नॉट नीड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और सेकंड होगा लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन स्पोरेंजियम। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की आंसर की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 पूछ रहा है व्हाट इज प्लेसेंटा, तो देखो इसका आंसर होगा द एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ अ टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। यहाँ पर एम्ब्रायो मतलब होता है चाइल्ड, जो बच्चा रहता है। ठीक है, और पूछ रहा है कि डिस्क्राइब इट्स रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसका देखो आंसर क्या होगा, दिस स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू ग्रोविंग बेबी एंड रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बेबीज ब्लड। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर आंसर होगा। थोड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। सो क्वेश्चन नंबर 32 इज सेइंग दैट 2 लैम्प्स, one rated 100 watt at 220 volt and other
60 watt at 220 volt are connected parallel to electric mains supply of 220 volt. Draw a circuit diagram to show this arrangement and calculate the current drawn by two lamps from the mains. Now see its answer. सो पहले इसका हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो है ये इसका सर्किट डायग्राम है। अब चलिए हम लोग कैलकुलेट करंट को करते हैं, करंट का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो पैरेलल सीरीज़ में वोल्टेज जो है वो इक्वल रहता है, ठीक है। तो देखो लैंप 1 का करंट क्या हो जाएगा, पावर बाय वोल्टेज, तो 100/220 तो 5/11 एम्पियर हो जाएगा लैंप 1 का करंट, ठीक है। लैंप 2 का करंट क्या हो जाएगा 60/220 तो 3/11। और जब हम लोग नेट करंट निकालेंगे तो करंट सबको ऐड कर देंगे, तो जब हम लोग करंट सबको ऐड करेंगे तो 0.7273 आएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 33 is asking that what are consumers? Name the 4 categories under which the consumers are further classified. चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो कंज्यूमर का डेफिनेशन हो जाएगा एनी ऑर्गेनिज्म दैट कांट मेक इट्स ओन फूड आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर का एक और डेफिनेशन भी होता है, मतलब बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं। जिससे एक होता है कंज्यूमर्स आर हार्बीवोरस विच गेट देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। और इसके बाद पूछा गया है कि कंज्यूमर्स को फर्दर कितने में क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो 4 भागों में हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस और डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर जो है सेक्शन डी। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको ए या बी करना है। मैंने ए किया है, अगर आपको बी चाहिए तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो मैं अभी ए का आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है व्हाई डू हार्बीवोरस नीड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द कार्निवोरस। और ठीक है, और इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड स्टेट द रोल ऑफ ईच इन डाइजेशन ऑफ फूड इन एलिमेंट्री कैनल ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो मैं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही साथ दे देता हूँ। तो 34 का एक आंसर होगा हार्बीवोरस ईटिंग ग्रास एंड need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest, hence carnivores like tiger have a shorter small intestine, ठीक है। और दूसरे का आंसर देखते हैं। और दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया था कि उस सब्सटेंस का नाम बताइए जो गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करता है। तो वो तो 3 सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। तो और इसका हमको रोल भी बताना है। तो रोल ऑफ HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। ये आपके NCERT बुक में दिया हुआ है। सेकेंड पॉइंट होगा HCl हेल्प्स इन ब्रेक डाउन, डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, ठीक है। और एक पॉइंट होगा HCl किल बैक्टीरिया एंड वायरस इन आवर स्टमक। तो ये HCl का रोल हुआ। अब हम लोग रोल ऑफ पेप्सिन देखते हैं। पेप्सिन इज अ स्टमक एंजाइम्स दैट सर्व्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन फाउंड इन इनडाइजेस्टेड फूड। और रोल ऑफ म्यूकस देखते हैं। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। हमको पता है कि इस सभी का आंसर का मतलब आप समझ ही गए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है व्हाट इज अ लेंस, लिस्ट 2 मेन कैटेगरीज ऑफ लेंसेज। और पूछ रहा है इन विच कैटेगरी इज अ डबल कॉनकेव लेंस प्लेस्ड, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है a convex lens of focal length 15 cm forms a real image at a distance of 20 cm from its optical center. Find the position of object. Is the image formed by the lens magnified or diminished? मैं इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही बार बताता हूँ, ठीक है। तो ये है आपका पहला का आंसर कि लेंस क्या है। लेंस इज अ ट्रांसमिसिव ऑप्टिकल डिवाइस दैट फोकस और डिस्पर्स अ लाइट बीम बाय मीन्स ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब लेंस क्या है, लेंस किसी भी लाइट रे को या तो डाइवर्स कर देता है या तो कन्वर्स कर देता है। और इसका 2 मेन कैटेगरी होता है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ये इन दोनों में से कौन सा लेंस
ये जो डबल कॉनकेव लेंस प्लेस्ड में कैटेगरी में आता है, तो उसका आंसर होगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस ही वो लेंस है जिसको हम लोग डबल कॉनकेव लेंस के जगह पर रखते हैं, ठीक है। इस पर डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का, जो एक कॉन्वेक्स लेंस का है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ था, जो कि एक रियल इमेज बना रहा था 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑप्टिकल सेंटर से। तो भी आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि रियल इमेज बन रहा है, इसलिए भी को हम लोग पॉजिटिव लिए। अगर वर्चुअल या इरेक्ट इमेज बनता तो हम भी को निगेटिव लेते, ठीक है। अब लेंस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो 1/v - 1/u = 1/f। भी तो आपका 20 दिया हुआ है, u निकालना है, और f 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो u आपका -60 आएगा, ठीक है। इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और पूछ रहा था कि ये मैग्नीफाइड होगा या डिमिनिश्ड होगा, तो इसका आंसर आप हमको बताइए, ठीक है। कि इसका आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, वो जो पैराग्राफ दिया उसको नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज़ अ फ्यूज़, राइट द मटेरियल यूज्ड इन फ्यूज़ वायर्स, हाउ इज़ अ फ्यूज़ कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। और सेकंड पूछ रहा है, स्टेट द रेटिंग्स ऑफ फ्यूज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है। आंसर देखते हैं फ्यूज़ क्या है। तो फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच इज़ डैमेज्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू इट। तो इसका आंसर तो आप भी जानते हैं, फ्यूज़ का बहुत सारा डेफिनेशन होता है। और फिर पूछा जा रहा था कि एक मटेरियल का नाम बताइए जो फ्यूज़ वायर में यूज़ होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा अलॉय, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, लीड, इस सब को हम लोग फ्यूज़ में वायर की तरह यूज़ करते हैं। और फिर पूछा जा रहा था कि इसको हम लोग कैसे सर्किट में प्लेस करते हैं, सीरीज़ या पैरेलल। तो हम लोग फ्यूज़ को हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसका सेकंड पार्ट में पूछा गया था, स्टेट द रेटिंग ऑफ फ्यूज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसका जो रेटिंग होगा वो होगा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर एटसेट्रा। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक पढ़ा है तो आपका अच्छा नंबर आया होगा एग्जाम में, ठीक है। देखते हैं 36 का क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज़, हाउ डज इट परफॉर्म इट्स फंक्शन। और एक और क्वेश्चन पूछा गया है 4 का, अ डिवाइस यूजेस 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, कैलकुलेट द रेटिंग ऑफ फ्यूज टू बी यूज्ड। तो इन दोनों का आंसर हम लोग देखते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्यूज। द मेन फंक्शन ऑफ अ फ्यूज इज टू प्रिवेंट द डोमेस्टिक डिवाइसेस ड्यूरिंग हाई वोल्टेज। इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज through the circuit, the temperature of fuse wire increase, this melt the fuse wire and breaks the circuit। हमको पता है कि आप लोगों ने भी इसका आंसर इसी तरह लिखा होगा, ठीक है। अब इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें दिया हुआ है कि जो एक डिवाइस है वो 1 किलोवाट का पावर यूज़ कर रहा है। तो पहले हम लोग इसको वाट में कन्वर्ट कर दिए, वोल्ट दिया हुआ था 220 वोल्ट। हम लोग को पूछ रहा था कि मतलब कितना करंट का वो रेटिंग ऑफ फ्यूज़ जाएगा। तो पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो इससे हमको करंट निकल गया, करंट इक्वल्स टू होगा 4.54 एम्पियर। मतलब हम लोग को 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगाना पड़ेगा ताकि जो है वो शॉर्ट सर्किट से हम लोग को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 का पार्ट बी है, ये और करके है। तो और का जो बी का 1 है वो मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये जो है एनसीईआरटी बुक में इसका आंसर दिया हुआ है। मैं इसके सेकंड वाला का सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये एगो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है बी का 2, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज़ अ रेजिस्टेंस 4 ओम। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ हाफ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। तो हमको सेकेंड वायर का रेजिस्टेंस को निकालना है। तो हमको पता है कि रेजिस्टिविटी जो है इसमें सेम होता है। तो एक ईजी फॉर्मूले की तरह से हम लोग इसका तुरंत आंसर निकाल लेंगे जो आपको तुरंत समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखो रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो
एल बाय ए, तो रेजिस्टेंस पहला मटेरियल क्या दिया था 4 ओम, और फिर रो एल अपॉन ए लिख दी, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। और हमको रेजिस्टेंस निकालना था, ठीक है, सेकंड का, तो लेकिन उसमें कंडीशन दिया हुआ था जो लेंथ है वो हाफ हो जाएगा और जो एरिया है वो डबल हो जाएगा। तो फिर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा रो L2 बाई A2, क्योंकि हम उसको L2 और A2 माने हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंड मटेरियल इक्वल्स टू रो L2 क्या दिया हुआ है, L हाफ दिया हुआ है, और एरिया क्या दिया हुआ है 2A दिया हुआ है। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R2 इक्वल्स टू रो L बाय ए मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, क्योंकि L बाय 2 दिया हुआ है और बाय 2 बाई है। तो जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 होगा, 1/4 होगा, ठीक है। और इक्वेशन 1 में देखो 4 ओम इक्वल्स क्या है रो L बाय ए, तो रो L बाय ए को हम लोग 4 लिख सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर दिए, तो R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 और कैंसिल 1 ओम आंसर। तो सेकेंड मटेरियल का कितना ओम होगा, तो 1 ओम इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होते हुए आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे इस पूरे सॉल्यूशन को बनाने में मतलब करीब 8 से 10 घंटा लग गया। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब का, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और मतलब अगर आपका आंसर मेरा आंसर से डिफरेंट होगा तो आप उसको कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट होगा तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अगर आपको साइंस जैसा मैथ का भी सॉल्यूशन चाहिए तो वो आपको 8 तारीख को मिल जाएगा, क्योंकि 8 तारीख को उसका एग्ज़ाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।